Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to the first session of your ICP lab. Walaikum Assalam, sir. Okay, now as you might not know कि हमारे पास avionics और mechatronics के combined students हैं और you both have same they share outline and everything. ठीक है. So a little about your program here. You guys must know कि avionics किस लिए होती है, मैकेट्रॉनिक्स इसलिए होती है, कुछ सोच समझ के आए होगे आई होप तो. Now, with this Zoom session, there's really not much time to explain stuff. तुम लोगों ने already Zoom की classes ली होंगी, so you guys know that we only have like 40 minutes before this goes off. Then we have to join another meeting for that matter. But you see, जो programming है, so yeah, this is like your introduction to computer programming. So यहाँ पे आप लोग C++ and yeah, mostly C++ पे ही काम करोगे, ठीक है? Maybe in between we would work on C sharp or some other program for that matter, ठीक है? There's LabVIEW and everything. But for now, you guys are going to learn about C++. Okay? अच्छा, C++ क्या होती है भाई? हमारे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, that is C++. Okay, that's zeros and ones. Computer, let me just explain it here. Okay, I'm gonna use Paint, share screen. Okay, so you guys are seeing this plane here, right? Like with time, हमारे computers, mobile phones, they have advanced a lot. ठीक है, काफी सारी एडवांसमेंट हमारी हो चुकी है. There was a time when we used to work with zeros and ones, and it's still हमारी जो कंप्यूटर की जो actual language है, that is 0 and 1. Okay, don't mind the handwriting because I'm using a mouse, of course. So zeros and ones, and this is known as binary language. Okay, again, so this is a binary language. ठीक है, कंप्यूटर ये यूज करता है. अच्छा, अब to make it easy for you, of course not everyone knows how to speak binary. So what we did was कि हमने आप लोगों के लिए आसानियां पैदा की हैं. जैसे जो भी हमारा क्या कहते हैं, विंडोज़ जिसने बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है आईओएस, एंड विंडोज़ हो गया हमारे पास, एंड्रॉयड हो गया. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करते हैं कि आपके लिए आसानी पैदा करते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर के लिए भी आसानी पैदा करते हैं. चाहिए ताकि you both can understand. You guys understand English से, so तुम लोग इंग्लिश में टाइप करते हो, कमांड्स देते हो, you use your mouse, you use your keyboard, और फिर क्या होता है कि पीछे जो है ना ये सारी चीज़ें ट्रांसलेट हो रही होती हैं इस लैंग्वेज में. ठीक है, बेसिकली प्रोग्रामिंग इज जस्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू बाइनरी, ठीक, ताकि कंप्यूटर समझ सके कि आप कंप्यूटर से क्या चाहते हैं. ओके, सही. So yeah, so this is what computer understands. अच्छा, by the way, zero means off. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये तुम लोगों के आगे काम आएगा. And one means on. If you guys have already learned about this concept, you guys should know, like I think metric में, or maybe inter, not inter, metric. So
This is what the computer binary language is. और आप इसे translate करते हैं. अच्छा, now why you guys are learning all of this stuff? Let me tell you. You guys have joined avionics and mechatronics, right? So let me transfer to this. Okay, before I start with this, what do you guys think? Like avionics के students से सवाल है. What is avionics? Sir, avionics is about the manufacturing of the aircraft, the internal structure of the aircraft body. What internal structure? The electronic system, sir. Okay, so you manufacture avionics systems, sorry, electronic systems of an aircraft, and you think that's avionics? Hmm? देखो मुझे खामोशी से क्लास लेनी होती मैं यूट्यूब पे ले लेता where you guys cannot interact at all. So I need interaction. So what do you think is avionics? Okay. Avionics is about, sir, how how the internal structure of the aircraft work, especially जब वो एयरक्राफ्ट की जो रीडिंग्स वगैरह होंगी, जो उसका इंटरनल वर्कआउट होगा, वो एवियोनिक्स में आएगा. और एरोस्पेस में हम एयरक्राफ्ट की जो मैकेनिकल बॉडी होती है, हम उसके ऊपर वर्क करते हैं. Well, yes. So you're close. Achha, avionics is, to be honest, avionics is not all about the electronics of the aircraft. Please mute your mic. Okay, so avionics सिर्फ electronics पे ही नहीं depend करता, ठीक है? Avionics वो सारी चीज़ें हैं जो electrical क्या कहते हैं डायलेमा है एक एयरक्राफ्ट का, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी संभाल सकता है. See, it's not really a big deal. उसके लिए हमारे पास मशीन्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल स्टफ मैन्युफैक्चर करती हैं. और डू यू थिंक कि हम लोग मतलब वो सोल्डरिंग आयरन लेके हम लोग बैठे होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स बनाने के लिए एयरक्राफ्ट के वो भी नो we have robots for that, we have machines for that. Say by the way, that's where mechatronics come. Say they are the ones who are manufacturing those machines and everything. So that is not avionics. Okay, avionics is the research, the development behind those electrical and electronics circuits. Avionics is about programming. It's all about programming. Say you are making software. There was a time जब aircrafts जो हैं वो they used cables. Say like cables like pulley जो होते हैं ना, pulley mechanism पे aircraft उड़ता था. केबल्स जोड़ी हुई होती थी, वो आप स्टिक खींचते थे, वो पीछे से उसको मूव करता था आपके एलिवेटर को या एलरॉन्स को या रडर को. सही है. तो उसके बाद एक टाइम आया कि जब एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल पे शिफ्ट हुए, और इलेक्ट्रिकल पे शिफ्ट होने के बाद ये होता था कि हम लोग अपने कंट्रोल कॉलम्स को जो है ना वो मूव करते थे, कंट्रोल स्टिक को, और वो सिग्नल जाता था किसी मोटर के पास और फिर कंट्रोल कॉलम्स मूव होते थे, कंट्रोल सरफेसेस. सही है. और अब वो वक्त आ गया है कि नाउ इट्स अबाउट प्रोग्रामिंग. अब आपके पास ऑटो पायलट है, अब आपके पास ऑटो पायलट ना भी हो तो आपके पास एटलीस्ट जो पायलट की ऑगमेंटेशन है. व्हाट इज पायलट ऑगमेंटेशन? सही है. देखो जब ऑब्वियसली केबल्स पे हम उड़ते थे तो आपके जो कंट्रोल स्टिक है उसपे फीडबैक आता था एक तरह का, जिससे आपको पता चलता था कि यार एयरक्राफ्ट पे कितना प्रेशर फील हो रहा है. सही है. तो मुझे अपना जो है ना क्या कहते हैं मूवमेंट ज़रा कम करनी चाहिए. तो वो होने के बाद आप अब आ गए कि यार क्या कहते हैं जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गए.
तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ऑब्वियसली वो चीज़ पता नहीं लगती, तो आपको वो फीडबैक जनरेट करना पड़ता है। सो दैट इज़ नोन एज पायलट ऑगमेंटेशन। या अगर आप F-16s को देखते हैं या जेट फाइटर्स जो हैं आपके, तो F-16 एक हाईली अनस्टेबल एयरक्राफ्ट है। अनस्टेबल का मतलब ये है कि दैट कैन क्रैश एनी टाइम। बट अगर आप उसकी हिस्ट्री देखो तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एयरक्राफ्ट। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसे पॉसिबल किसने बनाया? ये एक एवियोनिक्स इंजीनियर का काम है। सही है। एक एवियोनिक्स इंजीनियर इस चीज़ को पॉसिबल बनाता है कि यार एक चीज़ बहुत अनस्टेबल है, उसे स्टिल स्टेबल कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स, थ्रू कॉन्सेप्ट्स एंड थ्रू प्रोग्रामिंग इन द एंड। See, everything comes down to programming. So avionics is basically uh, the main source of avionics is programming. And that goes for mechatronics students as well. mechatronics सिर्फ ये नहीं है कि यार मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स उठाए उन पे इलेक्ट्रॉनिक्स चेपी और जाने दो जी मैं तो मैकेट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ। नो, mechatronics is about कि एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर लिया जस्ट लाइक एन रोबोटिक आर्म। रोबोटिक आर्म में इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुई हुई है, सब कुछ हुई है, वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है उस रोबोटिक आर्म में जान डालना। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक वायर्स ये कोई बच्चा भी कर सकता है, ये इलेक्ट्रिक वायर्स एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी कर सकता है। बट यू गाइज ऑन द अदर हैंड, यू आर द बैकबोन ऑफ दिस होल थिंग। उस चीज में जान डालने वाले तुम लोग हो। ठीक है। एंड हाउ डू यू डू दैट? यू डू दैट थ्रू प्रोग्रामिंग, यू डू दैट थ्रू coding and everything. सही है। So I think two guys have raised their hands. Yes, if you guys have any questions, please ask. सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज आ रही है? या अब आ रही है। अगर आपने आपने कहा आपने कहा सर रोबोटिक आर्म में सर जान डालना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थ्रू प्रोग्रामिंग, तो सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी प्रोग्रामिंग वगैरह सीखते हैं, तो सर क्या हम्म। फर्क है मैकेट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में स्पेसिफिकली इस फील्ड में सर, जो आपने यार बात की रोबोटिक्स में देखो प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रिकल, तो वो भी करते हैं। यस, देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोग्रामिंग ज़रूर सीख रहा है, उनके भी आई थिंक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आई थिंक उनका भी कोर्स है। बट दे डू नॉट स्पेसिफिकली यूज प्रोग्रामिंग टू रन थिंग्स। ठीक है, इन देयर फ्यूचर। देखो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल लाइफ। आई एम अ प्रोफेशनल, you guys are not, you guys are students right now. So yeah, so I know कि यार एक मार्केट में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। बाय द वे, a little introduction about myself. मैं एक साइंटिस्ट हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एट दी पाकिस्तान एयरफोर्स। ठीक है, आई वर्क फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स। टीचिंग मैं करता हूँ साथ साथ में, टू बेसिकली कीप हमारे, देखो एक गैप आता है प्रोफेशनल इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज में, एक गैप है। ठीक है, यूनिवर्सिटी डोंट हैव नो आइडिया कि प्रोफेशनल इंडस्ट्री में अभी क्या काम चल रहा है, एंड दैट्स वेयर आई कम इन। So yeah, I introduce all these professional studies into your university. So I'm a scientist at Pakistan Air Force, and I design all of these things, like from rockets to aircrafts, and I design missiles and flight control computers of various aircrafts. I have designed Pakistan's first simulator, which is in your university currently. So simulators ka idea, if you do not know, simulators are basically uh, to reciprocate your flight, your aircraft, ताकि आप on ground pilots को training दे सकें. So that is it basically works just like a real aircraft. So I'm the one who designed that, or that is what professional stuff is. So you understand and you learn कि यार मैंने जो एक्चुअली पढ़ा था वो काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज एज एन एवियोनिक्स इंजीनियर, एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्च एंड डेवलपर, मेरा सारा काम आता है सॉफ्टवेयर पे एंड प्रोग्रामिंग पे।
इलेक्ट्रिकल का काम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संभाल रहा होता है, मैकेनिकल का काम मैकेनिकल इंजीनियर संभाल रहा होता है। एज एन एवियोनिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स पर्सनल आपका काम आता है बैकवर्ड सॉफ्टवेयर पे, सही है। एंड बिलीव मी, सॉफ्टवेयर ही असल जान डालती है हर चीज में। सो यह इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट पढ़ते हैं, सही है, उनको एक बेसिक आइडिया होता है प्रोग्रामिंग का सॉफ्ट, बट इन फ्यूचर अब जब जैसे आप लोगों दिस दिस इज योर फर्स्ट सेमेस्टर राइट, सो एज यू मूव ऑन तो तुम लोग देखोगे कि तुम लोग को जो सॉफ्टवेयर पढ़ाए जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल वालों के पास नहीं है, एंड इलेक्ट्रिकल वालों को जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं वो तुम लोग नहीं पढ़ रहे। सो दिस इज वेयर द गैप कम्स, ठीक है। बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू लर्न दो सॉफ्टवेयर, क्योंकि उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिकल वाले का काम है कि सारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग संभालना एंड हर वो चीज़, व्हाट दिस इज, ओके। सो इलेक्ट्रिकल वालों का काम है इलेक्ट्रिकल की सारी वायरिंग्स एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालना। वेयर इज यू गाइज, चाहे वो मैकेट्रॉनिक्स हो या चाहे वो एवियोनिक्स हो, यू गाइज कैन, यू गाइज आर द वंस जो कि चीज़ों को जिंदा करते हैं, ठीक है। एंड दैट इज थ्रू प्रोग्रामिंग। एक बीच में माइक्रोचिप्स आती हैं, प्रोसेसर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट यू नो टू वर्क इट ऑल आउट, तो कंप्यूटर की जो मैं बता रहा था ना लैंग्वेज, जीरोस एंड वंस, जो बाइनरी, वो तुम लोग संभालते हो, सही है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड दीज डेज, ऑगमेंटेड। इवन तुम लोग की गाड़ियां जो आजकल आ रही हैं, न्यू जनरेशन की कार्स जो हैं, उनमें भी सारी ऑटोमेशन है, सही है। एंड दैट इज थ्रू प्रोग्रामिंग। तो वहाँ पे मैकाट्रॉनिक्स के बंदे आते हैं, सही है। एवियोनिक्स फिर एयरक्राफ्ट्स की तरफ जाते हैं। So we have both of these things in future ahead of us. Yes, any questions? Excuse me, sir. I सर have a ये आपने question. बताया जैसे कि एक एक करके, एक एक करके। मैकेट्रॉनिक और इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड का बंदा अलग अलग काम करता है। हम्म तो सर जैसे कि कोई रोबोट्स तैयार किए जाते हैं या किसी भी तरीके की जो जैसे पावर प्लांट है या किसी भी तरीके के, तो उसमें सर सॉफ्टवेयर का क्या सर अगर मैकेनिकल इंजीनियर उसको स्ट्रक्चर देता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो उसकी सर वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को जो है वो मैन्युफैक्चर करता है या उन्हें फंक्शनेट करता है। तो हम्म सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर है तो वो सर उसके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को तब तक वो सॉफ्टवेयर में डेवलप नहीं कर, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाएगा जब तक एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसके जो पार्ट्स हैं उनको डेवलप नहीं करेगा या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट्स हैं उन्हें हम्म मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली। सर जैसे कि आपने बताया कि एयरक्राफ्ट्स हो गए या उसके अलावा जो मतलब हैं मिसाइल्स हैं इनमें, तो सर जैसे कि एरोस्पेस एक है इंजीनियरिंग है जो कि एरोस्पेस स्पेस के बारे में, हम्म तो सर उस पे जाने वाले रॉकेट्स हो गए हैं जैसे, तो इनमें भी सर मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट या मैकेट्रॉनिक्स फील्ड के बंदों की वो होती है क्या कहते हैं फील्ड्स या उनके काम होते हैं, जैसे कि एरोस्पेस तो एक स्पेस टेक्नोलॉजी है, तो हम्म सर उसमें मैकेट्रॉनिक्स का कोई फंक्शनेट है या उसका कोई किरदार है? देखो, aerospace, by the way, it's not about just space, it's about your, you know, the whole structure of your aircraft. So वो एक एरोस्पेस इंजीनियर होता है। एंड वहाँ पे एरोस्पेस में इवन मैकेनिकल का बंदा भी नहीं आ सकता। जस्ट लाइक एवियोनिक्स वाले बंदे जो है वो इंडस्ट्रीज की तरफ नहीं जा सकते, सही, बिकॉज इंडस्ट्रीज नीड रोबोटिक्स एंड एवरीथिंग। ऑल्दो हम लोग जो एवियोनिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो रोबोटिक्स के पढ़ते हैं, बट यू नो देयर इज ऑलवेज एविएशन इनटू इट। तो इसी तरह जो एरोस्पेस है वहाँ पे जो एक मैकाट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है या मैकाट्रॉनिक्स का पर्सनल है, दे डोंट रियली मेक इट देयर, ठीक है। योर वर्क इज अबाउट ऑटोमेशन, रोबोट्स एंड एवरीथिंग। एंड जस्ट आपने जैसा ये कहा कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, ये तीनों बंदे एक साथ काम करके एक इंडस्ट्री में एक मशीन बनाते हैं, सही है। तो यू नो व्हाट यू गाइस आर, जो मैकेट्रॉनिक्स के बंदे हैं, यू गाइस आर ऑल थ्री ऑफ देम, सही है। सर यू तो जो इन मैकेट्रॉनिक डिपार्टमेंट्स का स्टूडेंट होता है या मैकेट्रॉनिक फील्ड का बंदा है, वो सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों फंक्शनेट को एक साथ प्रोसेस में करेगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली एक बंदा तीन फंक्शन को वो है वो डेवलप कर रहा है उस एक मशीन के एग्जैक्टली अंदर, जो दैट कि इज सॉफ्टवेयर का काम भी कर रहे हैं और मैकेनिकल का भी और इलेक्ट्रिकल का भी। एग्जैक्टली दैट इज तो व्हाट आई सर जैसा मीन। कि
मैकेट्रॉनिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल की मिक्सचर है। हम्म तो सर जैसे आगे जाके ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है या हम्म ऑटोमेशन फील्ड, ऑटोमोटिव फील्ड हो गई जो कि कार्स, स्पोर्ट्स कार्स के स्ट्रक्चर या उनके इंजन्स को मैन्युफैक्चर करती है। हम्म तो सर उस फील्ड में या उस क्या कहते हैं एक के उसे प्रोडक्शन उसकी करने में या उसमें भी एक मैकेट्रॉनिक के बंदे का हाथ होता है साथ में कि वो उसकी हेल्प आउट करता है उसकी किसी पार्ट्स में या कहीं पे। ऑटोमेशन एक बिल्कुल चेंज है। नहीं, ऑटोमेशन बेसिकली उसी चीज से जो है वो रिलेट करती है बहुत ज्यादा। जैसे कि अभी तुमने कहा कि ये जो मैकेट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है, जो पर्सनल है, ये इन इसे तीनों चीज़ें आती हैं। एंड दैट इज़ वाई ये जो है वो क्या कहते हैं, ज़्यादातर हमारे पास अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे, फैक्ट्रीज हो गई या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए, तो वहाँ पे जो मैकेट्रॉनिक्स के पर्सनल है ना, दे आर इन चार्ज। तो ये वो आपके इलेक्ट्रॉनिक का बंदा काम कर रहा होगा, मैकेनिकल का बंदा काम कर रहा होगा, सॉफ्टवेयर का बंदा काम कर रहा होगा, बट उन सबका इंचार्ज होगा एक मैकेट्रॉनिक्स वाला। बिकॉज उसे तीनों चीजें आती हैं, उसे तीनों फील्ड्स की लॉजिक है, उनसे तीनों फील्ड्स का इल्म है। तो ही इज द इंचार्ज देयर से वो मैकेट्रॉनिक्स सॉरी मैकेनिकल साइड को भी संभाल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल साइड को भी संभाल रहे हैं, सॉफ्टवेयर साइड को भी संभाल रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं पता कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जस्ट जाके बताओगे कि भाई मैंने इस लिफ्ट को इस ग्राउंड से लेके तीसरी फ्लोर तक पहुंचाना है, वो आपको प्रोग्राम डेवलप करके दे देगा। एक इलेक्ट्रिकल वाले को बताओगे कि यार ये लिफ्ट को 0 से 3 पे लेकर जाना है, तो वो इलेक्ट्रिकल अपनी वायरिंग करके दे देगा। एंड सो कम्स द मैकेनिकल वाला बंदा। तो इन तीनों को नहीं पता होता कि यार आपस में ये बाकी की फील्ड्स में क्या हो रहा है, कैसे वर्क होता है और क्या करते हैं। बट एज अ मैकेट्रॉनिक्स स्टूडेंट तुम्हें पता है तीनों में क्या होगा, कैसे काम होगा। तुम्हें मैकेनिकल भी आता है, तुम्हें इलेक्ट्रिकल भी आता है, तुम्हें सॉफ्टवेयर भी आता है। दैट इज वाई you are the leader there, you are the in charge there, because you can do all of these। ठीक है। और तुम्हें अगर मैं सॉफ्टवेयर का काम दूंगा, तुम वो भी जानते हो, तुम इलेक्ट्रिकल भी कर सकते हो, तुम मैकेनिकल भी कर सकते हो। इससे फायदा क्या होता है कि देखो काम तुम्हें नहीं करना, यू आर एज आई सेड, यू आर द लीडर, यू आर द इंचार्ज। सही है, जस्ट लाइक मी, आई एम द साइंटिस्ट, आई एम इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं मैकेनिकल काम नहीं करता, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करता। मैं जस्ट मैं जस्ट ऑर्डर्स देता हूँ, मैं जस्ट डिज़ाइंस देता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, डेवलपमेंट के लिए आगे फॉरवर्ड करता हूँ, प्रोग्रामिंग सारी मैं करता हूँ, कंप्यूटर का सारा काम मैं संभालता हूँ। सो आई एम द लीडर देयर, आई एम द इंचार्ज। सो ये आई टेल पीपल एक्सक्यूज मी व्हाट सर, टू डू। उस्मान वजीर बात कर रहा हूँ। सर एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन है सर। ओके। सर ये जो एवियोनिक्स इंजीनियर है तो सर इसका फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है, यानी कि किस किस फील्ड में यानी कि इनको जॉब इजीली मिल सकती है? ये सिर्फ एविएशन से रिलेटेड है या टोटली और किस किस फील्ड से रिलेट किया जा सकता है एवियोनिक्स इंजीनियर को? और एवियोनिक्स और एरोनॉटिकल में क्या डिफरेंस है? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, आई हैव एन क्वेश्चन कि मैं हमने एवियोनिक्स इंजीनियरिंग में अगर बैचलर्स कर लिया तो हम फिर मास्टर्स किस फील्ड में आगे परस्यू कर सकते हैं? ओके, सो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बच्चे का आंसर ये है कि यार देखो, जॉब इज अबाउट कि तुम की कहाँ पे क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ के साथ। सही है। हमेशा लाइफ को इस तरह नहीं लेके चलना कि हाँ यार बस यहाँ पे पैसा ज्यादा है तो मैं इधर चला जाता हूँ। नो, जब तक तुम पास आउट हो रहे होगे, तुम्हारा एक माइंडसेट बना हुआ होगा। सही है, तुम मेच्योर हो जाओगे काफी अपनी फील्ड में, तुम्हें पता होगा तुम्हें करना क्या इन फ्यूचर। सो यू विल डू दैट। जस्ट लाइक आई न्यू कि यार मैं जब अपने 7th सेमेस्टर में था, मैंने पाकिस्तान का सबसे पहला जायरोस्कोप बनाया था, जो कि आप लोगों की लैब में भी पड़ा हुआ है। एक्चुअली यार अभी एज आई सेड के फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हुई नहीं है, otherwise all of these things would have been very easy to explain। so like मैं 7th सेमेस्टर में था जब मैंने पाकिस्तान का फर्स्ट जायरोस्कोप डिजाइन किया था। एंड वो सर डिजाइन तो इसी कर यूनिवर्सिटी से आप भी ग्रेजुएट हैं? एग्जैक्टली, मैं क्वीएफ कीट का ही ग्रेजुएट हूँ।
तो मैंने वो जायरोस्कोप डिज़ाइन किया। उसके उसको देखते देखते फिर जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो इंटरेस्ट उसने शो किया, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम। और मैं उनके साथ जो है उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में होता हूँ। से आई एम अ साइंटिस्ट अगेन देयर। सो इट्स लाइक दैट्स नोन एज यूनिट 118। एंड मैं तकरीबन पाकिस्तान एयरफोर्स की हर बेस में काम कर चुका हूँ। सही है, बिकॉज पोस्टिंग 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 होती रहती है आगे पीछे। सो सर तो दैट इज एक सेकेंड। सो दैट्स लाइक ये एक आपको जो है ना अपनी फ्यूचर में जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब आपको पता चलता है। अब मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि यार अगर जिसने B1 B2 की तरफ जाना है ना वो अभी इंजीनियरिंग छोड़ दे, बिकॉज B1 B2 का इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम अपना पैसा ज़ाया करोगे, अपना टाइम ज़ाया करोगे। तो अगर अब B1 B2 परस्यू करना है, अभी यूनिवर्सिटी अभी बल्कि क्लास जूम का सेशन छोड़ो और कोर्स ड्रॉप करो और यूनिवर्सिटी को अल्लाह हाफिज करके B1 B2 की तरफ चले जाओ। बिकॉज सर तो B1 B2 क्या है, मतलब कि ये मैकेट्रॉनिक्स से कुछ अलग है? यस सर, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता B1 B2। ओके, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। B1 B2 इज अबाउट ऑल अबाउट एयरक्राफ्ट। जो आपके PIA में इंजीनियर्स काम कर, बेसिकली वो इंजीनियर्स नहीं होते यार, वो मैकेनिक्स और टेक्नीशियंस होते हैं जिन्हें इंजीनियर का लकब दे दिया जाता है। इंजीनियर में एक्सक्यूज मी, सॉरी सर इंटरप्ट करने के लिए। आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, B1 B2? हाँ, एंड सर ये हर एयरलाइन के लिए B1 B2 रिक्वायर्ड होता है? हर एयरलाइन के लिए B1 B2 रिक्वायर्ड होता है। सर तो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो एज अ एयरक्राफ्ट्स में जो इंजीनियर मतलब टेक्नीशियंस या मैकेनिक्स यूज होते हैं वो एक प्रोफेशनल इंजीनियर नहीं होते? नहीं, आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तान एयरफोर्स। देखो, पाकिस्तान एयरफोर्स B1 B2 करके नहीं जाते। पाकिस्तान एयरफोर्स में आपको इंडक्ट होना पड़ता है, ठीक है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में जो आपकी शॉर्ट कमीशन और लॉन्ग कमीशन कोर्सेज होते हैं उनके थ्रू आप फिर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस वगैरह की तरफ जाते हो। B1 B2 करके वहाँ कोई नहीं जाता। B1 B2 करके आप जाओगे एविएशन साइट पे, जो आपके ये PIA हो गया या ये जो जितनी भी क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, एयरपोर्ट की एयरलाइंस साइड वगैरह के लिए। एयरलाइंस जो हैं, तो एयरलाइंस में आप B1 B2 करके जाओगे और वहाँ पे सॉरी टू से यू आर नॉट एन इंजीनियर। तुम्हें नाम जरूर इंजीनियर का दे दिया जाएगा, बट यू आर अ टेक्नीशियन एंड मैकेनिक, ठीक है। क्योंकि आपका काम क्या होता है कि यार आप जो है वो इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर्स को बाहर निकालो और उसे एक्सचेंज करो। कोई चीज़ ख़राब हो गई है उसे रिप्लेस कर दो। मैं एज अ मैकेनिक आपका यही काम होता है कि यार कोई चीज़ नट्स वट्स खोले, स्क्रू टाइट और ढीले किए, बेसिकली अपने हाथ गंदे करना। तो एक इंजीनियर जो होता है ना वो इन चीज़ों को बनाता है, वो इन चीज़ों को रिपेयर नहीं करता। तो इंजीनियर का काम है कि टू क्रिएट समथिंग न्यू। चाहिए आपने कुछ नए सिरे से कुछ बनाया, चाहिए टू रिसर्च एंड टू डेवलप बिहाइंड द स्क्रीन्स एंड एवरीथिंग। तो वहाँ पे आप बस अपने हाथ पैर कपड़े गंदे करोगे। जैसे एक गाड़ी के मैकेनिक के पास जाते हो, तुम कहते हो यार बम्पर टूट गया, उसने बम्पर खोल के दूसरा बम्पर लगा दिया, सही है। ये वहाँ पे एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। और इलेक्ट्रिकल में गाड़ी वाले के पास गए, तुमने कहा कि यार ये लाइट खराब हो गई है, उसने लाइट निकाल के दूसरी लाइट लगा दी, तो वो वहाँ पे भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए। तो दैट्स द होल थिंग। मैंने आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम देयर एज वेल, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। सही है। एक मैंने एक एक्सक्यूज मी जहाज, सर। यस। यस सर, जैसा कि आपने कहा कि यू ऑलरेडी वर्क फॉर द पाकिस्तान एयरफोर्स ना, जब हम्म कोई भी जो फाइटर जेट होता है, जब हम उसे कहते हैं कि हम इसको न्यू जनरेशन में हम इसे अपग्रेड करते हैं, हम्म जैसे कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने क्लेम किया कि हमने JF-17 को 4th to 5th जनरेशन में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। हम्म। सर, व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ एवियोनिक्स टू कन्वर्ट और टू अपग्रेड सम जेट फ्रॉम 4th to 5th और 5th to 6th जनरेशन? यार देखो, जनरेशन्स का बहुत सारा एक बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई नो दैट बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द टीम, सही है, जो कि एयरक्राफ्ट को यस अपग्रेड करते हैं, ठीक है। JF-17 की अपग्रेड्स हो गई, C-130 की अपग्रेड्स में आई वाज देयर। ओके, तो जो सर। पहला अपग्रेड होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल,
ठीक है। इलेक्ट्रिकल अपग्रेड्स कैसे होते हैं कि यार आपने इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जगह जो है ऑप्टिक फाइबर पे उसे कन्वर्ट कर दिया एयरक्राफ्ट को ना, वो एक काम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। अगेन ऑप्टिक फाइबर पे यस कन्वर्ट कर दिया उस एयरक्राफ्ट को, वो भाई एक जनरेशन अप हो गया। ऑप्टिक फाइबर को कन्वर्ट करके होता ये है कि आपका कम्युनिकेशन टाइम कम हो जाता है और आपकी एयरक्राफ्ट की कम्युनिकेशन स्पीड ज़्यादा हो जाती है सही बिटवीन द होल सिस्टम। फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर तेज़ हो जाता है आपका। तो दैट इज हाउ वी से कि यार ये जो है ना एक जनरेशन अप हो गया। तो दूसरी होती है आपकी एवियोनिक्स अपग्रेडेशन। एवियोनिक्स अपग्रेडेशन जब आती है उसमें पूरा रोल एक एवियोनिक्स के बंदे का होता है। जैसे हम लोगों ने किया था एयरक्राफ्ट जो होता है उसकी पूरी अच्छा ये चीज़ें नोट करते रहो, ठीक है। इनके ऊपर तुम लोग ज़रा गूगल करना पड़ेगा, खुद भी पढ़ो इस बारे में बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू योर फील्ड। CFDs होती हैं, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स परफॉर्म करते हैं JF-17 के ऊपर या किसी भी एयरक्राफ्ट के ऊपर। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के बाद हमें उस एयरक्राफ्ट के सारे ऑल्टीट्यूड एटीट्यूड वगैरह सारी चीज़ें जितने भी रेट्स हैं वो पता चल जाते हैं, ठीक है, कि एयरक्राफ्ट किस तरह परफॉर्म करता है। और फिर उसके बाद हम उसके लिए FPGA बोर्ड्स तैयार करते हैं। FPGA बोर्ड्स होते हैं फील्ड प्रोग्रामेबल गेटेड आर्किटेक्चर। फील्ड प्रोग्रामेबल गेटेड आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक कंप्यूटर होता है हर एक स्पेसिफिक सिस्टम के लिए, ठीक है। मिसाइल के लिए, मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए अलग FPGA है, लैंडिंग गेयर्स के लिए अलग FPGA है, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर का अलग FPGA है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फिर हम इन पे प्रोग्राम रीप्रोग्रामिंग करते हैं, इन्हें फास्ट करते हैं। इन पे जो है वो लेट सपोज C++ के बाद हम चले गए पाइथन पे, पाइथन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा दी तो अपग्रेड हो गया एयरक्राफ्ट। सही है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन जो है वो री इंटीग्रेट होता है एयरक्राफ्ट, तो सिस्टम्स अपग्रेड हो जाते हैं उसके सारे। तो यहाँ पे सारा काम एवियोनिक्स के बंदे का होता है कि यार पीछे ये सेंसर लगा हुआ है जो कि सेंस कर रहा है कि एयरक्राफ्ट कितना टिल्ट हो रहा है, कितना पिच अप हो रहा है, पिच डाउन हो रहा है। और वो सेंसर के सारा डेटा लेके हम उसको जो है प्रोग्राम करते हैं अपने पास कंप्यूटर में। और फिर उस डेटा से हमें जो भी काम लेना होता है, से ये लेट सपोज एयरक्राफ्ट को स्टेबल करना है या एयरक्राफ्ट को मूव कराना है या ऑटो पायलट है, तो ये सारी चीज़ें जो है फिर हम लोग प्रोग्राम करके इन्हें इन फर्दर एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सरफेसेस पे देते हैं। जैसे आपका हो गया एलिवेटर, एलरॉन, रडर एंड एक्सेट्रा। यू गेट इट। तो ये सारा काम होता है एक एवियोनिक्स के बंदे का इनकी अपग्रेडेशन पे। अच्छा, वी हैव अराउंड 4 minutes लेफ्ट, सही है। उसके बाद होगा ये कि वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 minutes एंड देन वी विल कम बैक टू दिस सेशन। ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। यस। सर तलहा तारिक बात करें सर। काइंडली जैसे कि हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अभी फुली अपग्रेड वो है एयरक्राफ्ट्स या जो हैं फाइटर जेट्स नहीं है जैसे कि अमेरिका या फर्दर कंट्रीज़ की आर्मी की वजह से। तो सर हमारे पास जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं या जो फाइटर जेट्स होते हैं वो बिल्कुल न्यूली होते हैं या हम जो है वो दूसरे फर्दर कंट्रीज से जो कि उनके पुराने हो चुके हैं खरीद के उनके अंदर अपग्रेडेशन करते हैं या वो अपग्रेड जैसे कि सर अमेरिका के पास आई थिंक अभी एक न्यू एयरक्राफ्ट आया है जो कि उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है F-35। आई थिंक कि जो उनके फाइटर आई थिंक फाइटर जेट्स है। यस, वो जी F-35 सर। कहलाता है। जी तुम्हारे सर एफ थर्टी पीछे फाइव शोर कहलाता है बहुत लेकिन हो उसके रहा है। एग्जैक्ट सर उसका असल में एग्जैक्ट नेम जो है वो F-35 नहीं है लेकिन आई थिंक उन्होंने उसे F-35 ही कहा है लेकिन एग्जैक्ट उसका कुछ और नेम है सर। तो काइंडली वो फुली अपग्रेड है उसमें जो उस दिन मैं सर उसकी एक वीडियो देख रहा था पूरी यूट्यूब पे उसकी रिव्यू कर रहा था तो उसमें से बहुत से फंक्शंस थे और बहुत से उसके अंदर प्रोग्राम्स और बहुत हाईली अपग्रेड था। तो सर उसके मुकाबले यार में जो अपग्रेड अभी नहीं जब हम कहलाएंगे यूट्यूब वो, पे देखो कंपेयर वो करते हैं फाइटर जेट्स को या उनकी कुछ क्वालिटीज़ को तो सर वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो जेट्स हैं उनके साथ कंपेयर करा था। तो सर जब उसने इंडियन और पाकिस्तान आर्मी या और पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं और सर उनसे कंपेयर किया तो सर वो बिल्कुल ही ना लो
मतलब कि बहुत ज़्यादा फर्क था जब निस्बत इसकी कि जब उसने चाइना से उसे ओके हेलो या अपना माइक म्यूट करना, पीछे जरा जो ना शोर हो रहा था, तो आई कैन आंसर योर क्वेश्चन देन। अच्छा यार देखो, मैं उसे अपग्रेडेड नहीं कहूँगा, सही है। जनरेशन के मुकाबले में अगर देखा जाए तो मैं वही एयरक्राफ्ट जो है वो पुरानी जनरेशन के सिस्टम्स के साथ चला सकता हूँ, सही है। तो दैट इज नॉट नोन एज अपग्रेडेशन। फर्क सिर्फ ये है कि उसमें फीचर्स ज़्यादा हैं। दैट इज नोन एज F-35 लाइटनिंग, और आई थिंक अभी उसका सेकंड वर्जन भी आ गया है, वो वीटोल कहलाता है। वीटोल बिकॉज इट हैज़ वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम, सही है। यानी वो एक एयर हेलीकॉप्टर की तरह सर वर्क। अगर हम उसमें आप कह रहे हैं कि आप पुरानी जनरेशन के एक उसमें भी हेलो सर अभी क्लास एंड हो जाएगी 1.5 मिनट के बाद, तो मैं कितनी देर के बाद वापस आना है? ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 5 to 10 मिनट्स। मैं अगेन ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा। सर काइंडली आपने बताया कि आप उसमें पुरानी जनरेशन के जो हैं वो उनके अंदर भी आप जो है अपग्रेडेशन हो के उन्हें वो उसी मुकाबले में खड़ा किया जा सकता है सर। लेकिन देखें एक कंप्यूटर सिस्टम है, वो एक मशीन है सर, कोर टू ड्यू, उसमें हम अपग्रेड चाहे जितनी भी करें लेकिन हम सर उसे कोर नहीं आई नहीं नहीं 7 या नहीं, कोर आई एक 9 सेकेंड एक 9 सेकेंड है। जनरेशन नहीं कर सकते हैं कोर आई 5, क्योंकि सर इट्स नॉट कोर टू डू, इट्स जस्ट लाइक के आपके पास कोर i9 लगा हुआ है और उसमें आप विंडोज 7 चला रहे हो या विंडोज 10 चला रहे हो, तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम नया या पुराना होता है। जो बाकी के सिस्टम्स हैं वो हमारे काफ़ी मुकाबले के हैं, ठीक है। अच्छा खैर, वी हैव लेस देन अ मिनट लेफ्ट। हम लोग ये मीटिंग एंड करके वी विल जॉइन बैक अराउंड 10 मिनट्स एंड देन वी विल स्टार्ट कंटिन्यू आवर डिस्कशन, ओके। अरे अटेंडेंस एक क्वेश्चन है सर। एक सेकेंड, वी आर आउट ऑफ टाइम राइट नाउ, so we will continue.